Hello students. Today I am back with one more chapter. And now the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom Class 10th English book. Yes, this is the chapter from the main reader. Okay students, I have also made one video before on this chapter, but in that video I have discussed the whole of the chapter with the help of a flowchart. But now I am going to discuss this chapter with you in its complete text. Okay, students, I am going to discuss with you the whole text of this chapter. Yes, students, see. दिस इज चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला. आई थिंक नेल्सन मंडेला का नाम तो आप में से बहुत लोगों ने सुना ही होगा. बहुत सारे जानते हैं नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कि रंग भेद की नीति के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की और गोरे लोगों का काले लोगों पर किए गए शोषण का उन्होंने विरोध किया और उसको ख़त्म भी किया. In fact, he has devoted his whole life for this in fighting against these injustices. Okay. So before you read, we have something here to discuss. Yes, students, see, apartheid. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system under very recently? Until yes, it is South Africa, students, because this system ended recently in 1994. Okay, have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Yes, students, 30 years is a very big lifespan. 30 साल बहुत होते हैं. उन्होंने पूरे जेल में काटे fighting against apartheid. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. Yes, Mandela became first black president of the South Africa. Okay students, see, in this extract from his autobiography, नीचे एक बॉक्स में एक्सट्रैक्ट दिया गया है और ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी से. ऑटोबायोग्राफी आप सभी जानते हैं जीवनी होती है, लेकिन कौन सी जीवनी? जो इंसान या जो जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो अपने आप जब लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और उसी की कहानी जब कोई दूसरा लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं. ठीक है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मंडेला एंड इन दिस मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन. एक हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक घटना के बारे में वो बताते हैं और वो घटना क्या है? द इनाग्रेशन. ठीक है, इनाग्रेशन यानी कि उद्घाटन. किस चीज़ का उद्घाटन हो रहा है ये आपको अभी आगे इसमें पता चलेगा. ओके. मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ये उद्घाटन हुआ. See, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in first democratic elections of South Africa's history. Yes, 200 ये 52 252 सीट्स मिली 400 सीट्स में से और उनकी पार्टी जीत गई. The inauguration ceremony took place in the Union Building's amphitheater in Pretoria today. Attended, ये उस दिन की घटना है जिस दिन ये ओथ सेरेमनी हुई. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Yes students, 140 देशों ने शिरकत की. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Address means वो speech में उन्होंने कहा कि अब ये जो हमारा देश है दोबारा कभी भी एक इंसान की दूसरे इंसान के ऊपर हुकूमत को नहीं देखेगा या उनके ऊपर किया गया वो ऑपरेशन होता है शोषण को अब एक्सपीरियंस नहीं करेगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria जगह का नाम है. Followed the ceremony with blacks, whites and coloreds. Means उनके इस इनाग्रेशन सेरेमनी में, इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में लोग सभी आए थे. ब्लैक, वाइट, एवरीबडी came together. More than 100,000 South African men, women and children of all races. All races मतलब सभी जातियों के sang and danced with joy. Now see, here is one activity. In column A some phrases are given and in column B their meanings are given. Okay students, you will do it yourself. मैं जैसे जैसे ये सारे जो phrases हैं इस तरफ ये वाली के सारे इसमें आएंगे
आगे आपके चैप्टर में। तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको वहाँ समझाती जाऊँगी और उसको समझ के आप इसकी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। See, here the chapter begins. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever international leaders of South African soil. ये इनाग्रेशन हो रहा है तो साउथ अफ्रीका में इससे पहले इंटरनेशनल इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी, तो सुबह से ही वो लोगों से घिरे हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस विथ यू कि ये सेरेमनी प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में हुई, और एम्फी थिएटर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर की रूफ नहीं होती, स्टेडियम टाइप, ओपन स्टेडियम टाइप, ओके। फॉर डेकेड्स, डेकेड्स मीन्स 10 साल का जो एक इरा होता है उसको डेकेड कहते हैं। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। ये स्टूडेंट, ये वाइट सुप्रीमेसी, ये ऊपर आपको जो अभी मैंने आपको एक्टिविटी बताई ना उसमें ये आया हुआ है। वाइट सुप्रीमेसी मीन्स अंग्रेज़ों का राज था वहाँ पर, गोरे लोगों का। तो तब इससे पहले एम्फी थिएटर जो है ये प्रिटोरिया का, ये सेंटर ऑफ पावर आप कह सकते हैं, मतलब वाइट लोग यहीं से रूल करते थे, यहीं उनका सेंटर था। एंड नाउ इट वॉज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। उससे पहले वहाँ से गोरे लोग देखे जाते थे, अब रेनबो, रेनबो को क्यों, देखो इसमें एक तरह से आपका आ जाता है, यहाँ पर आपकी एक लिटरेरी डिवाइस आ जाता है, उसकी कंपैरिजन किया गया रेनबो के साथ, ओके। आप इसमें यहाँ मेटाफर कह सकते हैं। रेनबो मतलब रेनबो होता है डिफरेंट कलर से, 7 रंगों से बनता है, तो डिफरेंट कलर्स के लोग हैं इसमें। इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, पहली डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक सरकार यहाँ बनने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आएगा आपको आगे कि 10 मई को इन्होंने क्यों ऑटम डे कहा। देखिए ऑटम डे क्या होता है, जब गर्मी, पतझड़, गर्मियों के बाद और ये बरसात का सबके बाद ऑटम आ जाता है। ऑटम एक शांत सा वो होता है, एक आपका बोल सकते हैं ठंडक आती है उस समय। तो अब ये बताने, ये कंपेयर कर रहे हैं, कि इससे पहले जो लोग हैं वहाँ पे तकलीफ़ को झेल रहे थे, अब उनके जो लाइफ है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, उसमें एक ठहराव आया है, वो पुरानी ज़िंदगी से लोग बाहर निकल आए हैं। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो डी क्लार्क सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उन्होंने पहले शपथ ली। देन सी, ये पिक्चर है नेल्सन मंडेला की। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. Yes, आपको पता होगा प्रजातंत्र में constitution, संविधान सबसे ऊपर होता है. So he pledged to uphold that constitution and to work for the welfare of the people. Already he was working for his people. टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। नाउ स्टूडेंट्स सी, ये जो आगे की ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वर्ड्स एज इट इज़ जो उन्होंने कहा था स्पीच, उसी में से लिए गए हैं, ओके। सी, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Extraordinary human disaster क्या है, ये भी आगे आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। Human disaster means the difficulties, the problems being faced by the black people of South Africa, जो उन्होंने, काले लोगों ने जो गोरों के हाथों जो शोषण सहा है, दैट वाज ह्यूमन डिज़ास्टर। तो कहते हैं अब उसके बीच में से एक ह्यूमैनिटी, एक ऐसी सोसाइटी पैदा होगी जिसके ऊपर की पूरी ह्यूमैनिटी को नाज होगा। वी हु वर आउटलॉज, यस आउटलॉ मतलब जिनके साथ कोई भी कंट्री जो है वो उसको तड़ी पार, एक मतलब एक तरह से निगलेक्ट कर देती है, बैन कर देती है। कोई अपार्थे का वहाँ रूल था वाइट लोगों का, तो उनकी इस पॉलिसी को लोग जो बाकी के देश हैं वो नहीं मानते, इसलिए उन्होंने उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। तो साउथ अफ्रीकन्स कहते हैं वी वर कंसिडर्ड आउटलॉज बिकॉज अपार्थे वहाँ था, और इसी वजह से कोई भी हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते आज हमें एक वो रेयर प्रिविलेज मिली है कि आज हम अपनी ही ज़मीन पर इतनी बड़ी गैदरिंग को, जो कि पूरी दुनिया से आए हुए लोग हैं, उनको होस्ट कर रहे हैं।
We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice, peace and for human dignity. कहते हैं यहाँ आप लोगों ने आकर ये साबित किया है एंड ही इज़ थैंकिंग दोज पीपल दोज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. ये वो बता रहे हैं कि आपने यहाँ आकर हमें सपोर्ट किया है, आपने हमारी पॉलिसी, जो कि उनकी पॉलिसी क्या थी, जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की, इसको भी सपोर्ट किया है. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. कहते हैं अब हमारा आगे क्या टारगेट है कि अब हम लोगों को किस चीज़ की कैद से छुड़ाएंगे, पावर्टी से, डेप्रिवेशन से. ये आपको आगे बेटा इसमें एक एक्सरसाइज आएगी वर्किंग अंडर लैंग्वेज में नाउन और वर्ब का नाउन फॉर्म चेंज करना. तो जैसे इसमें पुअर से बना पावर्टी, डिप्राइव से बना डेप्रिवेशन. ओके, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कि अब हम अपने पूरे देश को इन सब चीज़ों से आज़ाद करवाने वाले हैं. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Already ये लाइन ऊपर आई थी कि अब ये जो ज़मीन है वो अब एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ शोषण को नहीं देखेगी. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Yes, ऊपर एक वर्ड आया था ह्यूमन डिज़ास्टर और अब एक वर्ड आया है ह्यूमन अचीवमेंट. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें है आगे, या फिर आ सकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में भी आता है बच्चे, कि ह्यूमन अचीवमेंट क्या है और ह्यूमन डिज़ास्टर क्या है. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू द ह्यूमन डिज़ास्टर, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन अचीवमेंट. नाउ ह्यूमन अचीवमेंट हियर मीन्स दिस इनॉग्रेशन, और आप कह सकते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका. लेट फ्रीडम रेन. रेन मीन्स रूल. रेन का मतलब होता है टू रूल. कहते अब आज़ादी का राज होगा. गॉड ब्लेस अफ्रीका. हियर वी हैव सम कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस. सी, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Yes, you can search on the Google also. इंडिया में कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो सैंडस्टोन की हैं. और यहाँ पर सेरेमनीज एम्फी थिएटर जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है प्रिटोरिया में. सो कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? येस, ये भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. Let us move ahead. See, at the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. Yes, student, आ गया यही क्वेश्चन. ह्यूमन डिज़ास्टर क्या था? वो तकलीफ़ें, वो प्रॉब्लम्स, वो ऑपरेशन जो उन लोगों ने सहा. एंड अचीवमेंट है इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेसी. Now, what does Mandela thank the international leaders for? Mandela thanked the international leaders for the support they have given and they have come on his inauguration day. Now, what ideas does he set for the future of Africa? और ये ideas वो जो set करते हैं वो यहाँ दिए हैं. See that now they are going to free people from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Yes, students, see. Yes. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कहते हैं अचानक तभी हमने सब ने आंखें ऊपर उठा के देखी. जेट्स, जैसे कि एयर शो होता है 26 जनवरी में, आप देखते हैं इंडिया में भी, है ना, वो पैटर्न्स बनाते हैं एयरफोर्स के जवान और उनके जहाज़, तो ऐसे ही यहाँ भी बनाया गया. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स. ये होता है मिलिट्री का एक प्रदर्शन, लेकिन उस दिन ये मिलिट्री का केवल एक प्रदर्शन ही नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी. बल्कि उस दिन मिलिट्री ये बता रही थी कि हम डेमोक्रेसी के साथ हैं. To a new government that had been freely and fairly elected. Freely and fairly. Fairly means nyay. Now, only moments before the highest generals of South African Defence Force and Police, their chest bedecked means सजी हुई हैं with ribbons and medals. Air Force और वहाँ के military के officers की, and from the days gone by saluted me and pledged their loyalty. कहते कि वही लोग हैं मिलिट्री के जो अब मुझे सल्यूट करते हुए जा रहे हैं. इट वॉज़ नॉट अनमाइंडफुल. ये भी ऊपर आपको वहाँ ए और बी जो आए थे ना, उसमें ये एक्टिविटी है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ. कहते मैं इस बात का अवेयर हूँ, मैं इस बात को अभी तक भूला नहीं हूँ, दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी.
काफ़ी साल पहले यही मिलिट्री थी, यही पुलिस थी जिन्होंने मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था. एंड नाउ दे आर सैल्यूटिंग मी. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट. शेवरन होता है पैटर्न ऑफ वी शेप जब बनता है. लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग. उन्होंने एक साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया वहाँ पर. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing an ecosystem Africa and black singing diastem. वहाँ पर white लोगों का अलग anthem था, black का अलग, दोनों ही गाया गया. The old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of anthem. जबकि दोनों ही ग्रुप्स को अच्छे से एंथम की लिरिक्स नहीं आती थी, बट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. On the day of inauguration, I was overwhelmed. Overwhelmed होता है भाव विभोर होना. With a sense of history. अब वहाँ बैठे बैठे मंडेला एक बार इतिहास में चले गए, अपने पुराने दिनों में चले गए. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी, यानी कि 1901 के बाद की जो घटनाएं थी, कहते उसका मैं फर्स्ट डेकेड में गया. अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार हुआ था उन्हीं दिनों में. एंड बिफोर माई ओन बर्थ, इवन इनका बर्थ नहीं हुआ था तब तक, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. सी, साउथ अफ्रीका के ही जो वाइट लोग थे, साउथ अफ्रीका में भी दो रेसेस है ना, वाइट है और ब्लैक. तो वहाँ के जो वाइट लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों के खिलाफ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम बना दिया. इसी को कहा, इन्हीं गोरे लोग देखो, गोरे लोग हैं, अंग्रेज़ ही नहीं होंगे, हर जगह ये गोरे लोग हैं, पाए जाते हैं. तो उन्होंने डार्क स्किन लोगों के खिलाफ एक ये सिस्टम बना दिया जिसको कि अपार्थाइड कहा जाता है. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. और ये जो उनका जो बना, उन्होंने बनाया जो अपने ही लोगों के खिलाफ ये जो सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इनह्यूमन, अमानवीय और सबसे ज़्यादा बुरा था, हार्शेस्ट था. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और कहते हैं अब क्योंकि बात हो रही है 1994 की, तो ये लास्ट डेकेड है अपना इसका 20th सेंचुरी का. एंड माई ओन 8th डेकेड, यानी 80 साल उम्र हो चुकी है इनकी. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of color of their skin. कहते एक डेकेड आप मानो या एक सेंचुरी पूरी लग गई उस सिस्टम को हटाने में और नया सिस्टम डेमोक्रेसी का लाने में, जहाँ पर कि लोगों से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. कहते हैं और ये दिन आया है उन लोगों के बलिदानों की वजह से, जो मेरे ही लोग थे, जो इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ते लड़ते मारे गए. आई फेल्ट दैट डे आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. कहते उस दिन मैं अपने आप को उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेटिव मान रहा था, मैं उन्हीं में से हूँ, उन्हीं का एक अंश हूँ वहाँ पर बैठा हुआ. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी. कहते अब यहाँ तक वो पीछे के सारे लोग, वो जो मारे गए, उन्होंने जिन्होंने बलिदान दिए, वो मेरे तक आकर आज उनके वो बलिदान काम आए और हमें आज़ादी मिली. अब आगे मैं उनका एक, आप कह सकते हो, कड़ी के रूप में काम करूँगा. अब आगे एक नया इरा, एक नया युग शुरू हो रहा था. तो ये उस बीते वक्त और उस आने वाले वक्त के बीच की कड़ी अपने आप को महसूस कर रही हैं. ओके, आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक them and they were not be able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means brought out, ये done और achieved, कि उनके sacrifices ने आज क्या चीज़ लेकर आया है. देखो, एक आदमी के बेटा बलिदान से तो आज़ादी नहीं मिलती. इंडिया को भी आज़ादी गोरों के कैसे मिली है, लड़ लड़ कर मिली है. कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपना खून दिया है, अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान दी है. So the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. wound होता है ज़ख्म. तो अपार्थाइड की जो पॉलिसी है, इन्होंने अपने लोगों के मन में बहुत ज़ख्म बना दिए हैं. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. प्रोफाउंड मीन्स डीप. कहते हैं हम सभी उसको मतलब उस ज़ख्म से, उस दर्द से बाहर निकलने में हमें टाइम लगेगा. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect that it produced. लेकिन कहते कि ये जो है ना, ये ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी का एक पहलू और था. इन्होंने
ऑलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सेसुलूस, चीफ लुथिलस एंड यूसुफ डैडूज। ये बेटा नेम है और नेम के आगे सबके आगे एस लगाया है। नाम तो कभी देखो प्लूरल नहीं होता, गांधीज नहीं होता, ठीक है, भगत सिंह नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एस लगाने का क्या मतलब है, ये आगे क्वेश्चन आएगा। ये यहाँ पे एस लगाने का ये मतलब है कि उन जैसे लोग, उनकी क्वालिटीज़, इन लोगों की क्वालिटीज़ उनमें है। देखो बहुत से लोग शहीद हुए इंडियन फ्रीडम के लिए भी, उनमें से कुछ लोगों के नाम तो हमें पता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है, तो हम उन्हें भी भगत सिंह कह के बुला सकते हैं, गांधी कह के बुला सकते हैं। मतलब लाखों भगत सिंह शहीद हुए, भगत सिंह तो एक था मगर लाखों भगत सिंह कौन हुए, लाखों भगत सिंह मतलब भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने भगत सिंह जैसा सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ भी इसका मतलब यही है, ये उन्हीं लोगों के चित्र हैं यहाँ पे, इन लोगों की देखो, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ दोज freedom fighters who fought for this against the policy of apartheid and who laid their lives in fighting against these harsh this oppression. Okay, तो यानी इनके नाम के आगे एस लगाने का मतलब यही है, ये प्रोमिनेंट नेम है जो अपार्थे के लिए लड़े हैं, दिस ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सेसलू, ये देखिए आप, ठीक है। मतलब कहते हैं कि ये इस ब्रुटैलिटी का एक फ़ायदा हुआ कि ये लोग पैदा हुए, उस ब्रुटैलिटी के कारण ही ये लोग पैदा हुए। Courage, wisdom, and generosity that there may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. कहते शायद इतनी ऑपरेशन अगर होगा, इतना शोषण किया गया, तभी ऐसे कैरेक्टर के लोग पैदा हुए। अगर हर चीज़ इजी गोइंग होती तो शायद, देखो आपने बेटा देखा होगा कि एक मज़दूर है जो पूरे दिन धूप में काम करता है, ठीक है, उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा भी, कई बार आपने देखा होगा कि पीछे बांध के लेडीज़ काम कर रही होती है, धूप बारिश सर्दी गर्मी में वो बच्चा वैसे ही पड़ा हुआ है, धूप में खेल रहे हैं नंगे पैर। ओके, एक दूसरी तरफ वो बच्चा है जो आलीशान मकान में रहता है, उसके पास गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, गर्मी के दिनों में एसी लगाता है, सर्दी में वो हीटर लगाता है। दोनों में से स्ट्रांग कौन होगा? स्ट्रांग होगा उस मज़दूर का बच्चा जो सर्दी गर्मी धूप बारिश अपने माँ बाप के साथ सड़क पे सह रहा है, बिकॉज वो अपने आप को उस हार्श कंडीशंस में अडेप्ट करना सीख लेता है। लेकिन वो बच्चा जो गर्मी में रहा ही नहीं कभी, अगर उसको थोड़ी सी भी गर्मी लगेगी ना तो वो घबरा जाएगा। इसीलिए ये भी कह रहे हैं कि ऑलिवर टैम्बोज और भगत सिंह जैसे, मैं आपको भगत सिंह का इसलिए बार बार रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि वो इंडियन थे और आप उसको समझ पाएंगे कि इन जैसे लोग, जब शोषण ज़्यादा होता है तो तकलीफ़ों से ही ऐसे लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, जो उन जैसी तकलीफ़ों को सहेगा, उन जैसे कैरेक्टर्स की हाइट्स को भी वही पा सकता है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कहते मेरे कंट्री, आपने सुना होगा साउथ अफ्रीका, इट्स रिच इन सो मैनी मिनरल्स, गोल्ड डायमंड माइंस हैं वहाँ पर, लेकिन वो हैं कहाँ? धरती के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन कहते सबसे बड़ी दौलत तो उसके लोग हैं, क्योंकि ज़मीन में नीचे सोना गड़ा हुआ है, निकालेगा कौन? लोग ही तो निकालेंगे। अगर आप ही नहीं हो तो वो गड़ा सोना तो गड़े का गड़ा रह जाएगा। फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन कहते मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो क्या है? साउथ अफ्रीका के लोग। ये स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ यहाँ तक की डिस्कशन क्लियर है। अगली डिस्कशन जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को, इस चैप्टर की वीडियो को 2 हिस्सों में बना रही हूँ। तो आप ये वीडियो भी देखिए, आई थिंक इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर मैंने कर दी हैं। इसमें से कुछ नहीं समझ में आया है तो यू कैन कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। यस, एंड इफ़ यू सी, अब मैं आपको अगला जो पोर्शन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल, मेरा चैनल आपको सच में अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।